Hello students, today we are going to cover the topic vectors, which is very important for the learning physics. It is having a lot of application in each and every chapter of physics. If you understand the vectors, you can understand the physics. So we're going to start with the first topic. The name is physical quantity. तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हमें ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोगों को जब भी किसी भी नेचर की स्टडी करनी है, किसी भी लॉ की स्टडी करनी है या किसी भी तरह के हम लोग फिजिक्स के फिनोमिना की स्टडी करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फिजिकल फिनोमिना को अपीयर करने के लिए, लिखने के लिए कुछ एक टर्म्स यूज करते हैं। वो जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द क्वांटिटीज which are used to understand the laws of nature. It means what is happening all around the earth, that is called the nature. To understand the nature, we need some physical term, and these terms are called as physical quantities. To represent the physical quantities, we need to represent its magnitude first. What is called the magnitude? Magnitude of physical quantity. मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं हम लोग द व्हाट इज द अमाउंट, हाउ मच इज अमाउंट इज प्रेजेंट इन दैट term, that is called physical quantity. To represent the magnitude of a physical quantity, we write some number with its unit. जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल वाइज बात करें, यू आर राइटिंग द एरिया, the area is 10, that has no meaning. The area is 10 meters square has a complete meaning, that you are having area which is measured in meters. There are two dimensions which are measured in meters, so area is 10 meters square. Similarly, if you write a mass, the mass is at 10, so it is not fully representing the magnitude. So you will write some 10 kg, 10 gram, 10 kilogram, whatever you write, that gives you the whole amount of magnitude. So magnitude of physical quantity is written with the number and with its unit. Sometimes there are some physical quantity which do not have some unit, so we just write the number. But in the most of the cases, for representing the magnitude, we need a unit also. So this is the magnitude of a physical quantity. Now, based on their different aspects, based on their classification, we divide this physical quantity in two categories. One category is called as scalar quantities, and one quantity is called as vector quantities. So, what is called as scalar quantities? So how can we write a scalar quantity? The quantity which can be represented only by their magnitude. What does mean? The mean is that if you say the magnitude of physical quantity is this much, it is totally, completely defined. Say I am having mass of 10 kg. I am having the area of 10 meters square. I am having energy of 10 joule. So we need not to define the direction with it. So only magnitude can represent completely the physical quantity, that is called a scalar quantity. Now,
What are the quantities which are called as vector quantities, which are represented by magnitude and direction both? Is it the complete definition? No, this is not a complete definition. The physical quantity which is represent the magnitude and direction both are vector quantities with following vector algebra. The physical quantity which are following the vector algebra, they are vector quantity. If they are having a direction but does not follow the vector algebra, that is not a vector quantity. What does mean by vector algebra? तो ये vector algebra क्या चीज है यहाँ पे? वेक्टर अलजेब्रा को सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा जाए कि हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स। दो फिजिकल क्वांटिटी को, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के, सब्सट्रैक्ट करने के या मल्टीपल करने के जो रूल होते हैं उनको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। जिन फिजिकल क्वांटिटीज ने इन रूल को फॉलो कर दिया उसको हम वेक्टर्स कहते हैं, और जिन फिजिकल क्वांटिटीज ने नहीं फॉलो किया उनको हम स्केलर कहते हैं, इवन दे आर हैविंग डायरेक्शंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बात करें, वेक्टर अलजेब्रा को और ज्यादा सिंपल से लैंग्वेज में हम कहें, हम ये कहेंगे, एक एडिशन से एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने इस डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन से आपने जो है यहाँ पे फिर से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और आपको ये पूछा गया इस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, रिजल्ट कितना लगा, तो आपने कहा 20 न्यूटन लगा। सिमिलरली फिर से अगर हम आपको ये कहें कि एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन से आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इस डायरेक्शन से आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अब आपसे पूछा गया रिजल्ट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्ट विल बी ओनली 10 न्यूटन, दे विल सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन बदल देने से, सेम डायरेक्शन में लगाने पे हम उन्हें ऐड कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाने से हम उन्हें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यही समझिए कि अगर आपके पास कोई एक वायर है, इस वायर से 10 एम्पियर का करंट आता है, इस वायर से भी 10 एम्पियर का करंट आता है, दोनों वायर इस तरह से मिल जाते हैं और ये थर्ड वायर से करंट आउटपुट हो जाता है। बताओ बच्चों कितना करंट जाएगा? तो हम कहते हैं इनकमिंग करंट कितना हो गया, 10 प्लस 10 तो कितना जाएगा, 20 एम्पियर करंट आउटसाइड जाएगा। मतलब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में आए हैं और 20 एम्पियर करंट बाहर चला गया। अब वापस देखिए, अगर हम आपको ये कहें कि इधर से आपके पास जो है एक तरह से 10 एम्पियर करंट आता है, इस बार इधर से भी 10 एम्पियर करंट आता है किसी वायर से, और ये थर्ड वायर को हमने इस तरह से प्लेस किया कि इधर करंट वापस चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको कहें कि करंट कितना बाहर चला जाएगा, तो अगेन हम कहेंगे करंट जो है 10 और 10 मिला के 20 एम्पियर करंट इनकमिंग है, तो 20 एम्पियर करंट इनकमिंग है, तो 20 एम्पियर करंट आउटगोइंग है। मीन्स यहाँ पे हम कहें कि सेम डायरेक्शन में भी हम ऐड कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐड कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि स्केलर क्वांटिटी है।
रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज it does not follow vector algebra. ठीक है। इसी तरह से अगर किसी बॉडी की यूनि डायरेक्शन आती है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनि डायरेक्शन है तो उसको भी हम स्केलर क्वांटिटी में काउंट करेंगे। अब यूनि डायरेक्शन का मतलब होता है विच ऑलवेज एक्ट इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन, ऑलवेज विच ऑलवेज एक्ट इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। जैसे कि देखिए हम आपसे बात करें यहाँ पे प्रेशर की। प्रेशर कैसे एक्ट करता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो किसी भी सरफेस को अगर हम इस तरह से दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि यहाँ पे आप प्रेशर दिखाएं, तो यू विल राइट लाइक दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। सो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने की वजह से ये भी आपके पास कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी।